फिर So, beta, I told you regarding enthalpy change of solution that okay, when one mole of a solute is dissolved in a sufficient water to form an infinitely dilute solution, यानी कि जिसको मैं समराइज कर रहा हूँ कि like when the solid is changing into the aqueous ions. Simple, simple. This is very simple and short answer. When solid is going to form aqueous ions, so the enthalpy change that is happening in this reaction, that would be called enthalpy change of solution. Or let's suppose कि enthalpy of enthalpy change of solution जो आपका होता है, जनरली दिस इज एंडोथर्मिक. जनरली दिस इज एंडोथर्मिक. उसकी वजह क्या है कि let's suppose you are going to dissolve some salt in water. Let's suppose you have calcium chloride and let's suppose you have sodium chloride. So आपने नोटिस किया होगा कि whenever we are going to have a higher temperature, so the salt is having the greater solubility. और जब हमारे पास टेम्परेचर कम होता है तो आपके जो सॉल्ट की solubility होती है तो वो इतनी अच्छी नहीं होती है. मीन्स दैट द हायर टेम्परेचर is going to favor your reaction. मतलब कि आपकी solubility को वो increase कर रहा है. Higher temperature, it's mean that the reaction is endothermic. So on the basis of these facts, we are saying that the reaction is endothermic. यानी कि enthalpy change of solution is endothermic. Simply. Then we have hydration. Like what is hydration? When one mole of a gaseous ions dissolve in sufficient water to form an infinitely dilute solution. यानी कि यानी कि मैं इसको मैं summarize कर रहा हूँ कि when gaseous ion is going to convert into like उसको आप कह लो कि aqueous ions. aqueous ions, ओके. तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए aqueous ions, यानी कि कुछ ऐसा. गैस टू aqueous. गैस टू aqueous. और वहां पर क्या हो रहा था? सॉलिड टू aqueous ions. So this is the difference between solution and hydration. Also, enthalpy of hydration is exothermic process and highly exothermic process. Why this is exothermic? अच्छा, general statement आपको पता है कि you have discussed in the previous classes that bond formation is exothermic and bond breaking is endothermic. So as you can see, the bond is going to form between water and the cation. So as the bond is going to form between these two species, oppositely charged species, तो इसलिए ये जो reaction है आपका exothermic है. This is bond formation and bond formation is always exothermic, always exothermic. तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हाइड्रेशन जो होगा वो आपका क्या होगा बेटा? एक्सोथर्मिक होगा. अ, अब इसको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है एंड वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन. तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको ये बताया था कि लेट्स सपोज आपके पास कोई भी सोडियम क्लोराइड है. लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी हो. सो कोई भी आपका आयोनिक सॉलिड हो, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डिसॉल्व दैट आयोनिक सॉलिड इन वाटर, तो वो जब डिसॉल्व होता है ना, वो दो स्टेप्स में होता है काम. वो सारा काम दो स्टेप्स में हो रहा होता है. नंबर वन, द फर्स्ट स्टेप इज दैट the lattice of ionic compound is going to break down. बेटा सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला काम, whenever you are going to dissolve ionic solid in water, you will see that the lattice of that ionic compound is going to break down. सबसे पहला काम, breaking of ionic lattice. So breaking of ionic lattice means that this is your sodium chloride solid, and the sodium chloride solid has been broken down into the gaseous ions. gaseous ions, बेटा gaseous ions डायरेक्टली aqueous नहीं बनता. नोट करिएगा, छोटी छोटी बातें हैं ये, आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी. Once the gaseous ions are formed,
once the gaseous ions are formed, तो अब इस बीकर में यू हैव वाटर ऑलरेडी, आपके पास तो वाटर है ही है। जैसे ही आपके पास गैसियस आयन बन गए, तो बेटा वाटर इज गोइंग टू सराउंड दीज आयंस, वाटर इज गोइंग टू सराउंड दीज आयंस, और वाटर आएगा इनको सराउंड कर लेगा, वाटर आएगा इनको सराउंड कर लेगा, सिंपल। यानी कि अब गैसियस आयन आपका एक्वस आयन में चेंज हो जाएगा, लाइक दिस, गैस आयन आपका एक्वस आयन में चेंज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज स्टेप नंबर 2। और गैस टू एक्वस, आई टोल्ड यू दैट दिस इज हाइड्रेशन। ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बहुत काम आएंगी बेटा, कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे विच इज हाइड्रेशन एंड विच इज द लैटिस एनर्जी एंड विच इज द सॉल्यूशन। तो ये काम की चीजें हैं बेटा। अच्छा जी, तो मैंने आपको दो टर्म्स बता दी। द फर्स्ट वन वाज दैट, let's suppose I have taken sodium chloride and just poured into the liquid. So sodium chloride is going to dissolve in water. It's going to dissolve in water in two steps. The first step is the breaking of ionic lattice. And once the ionic lattice has been broken down into the gaseous ions, so you have water in the beaker. So the water is going to surround these cation and anions accordingly. तो वो जब सराउंड कर लेगा उसको, गैस टू एक्वस बन जाएगा, तो दैट वुड बी द हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये दो स्टेप हो गया। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि into the acid is equal to indirect. What if I have ionic compound and I'm going to dissolve that ionic solid in water directly? So what would be the direct method? डायरेक्ट मेथड इसका ये होता है कि आपने सोडियम क्लोराइड लिया और वो डायरेक्ट इसमें चेंज हो गया, सिंपल। डायरेक्ट ये किसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। दिस इज डायरेक्ट मेथड, दिस इज द डायरेक्ट मेथड कि आपका सोडियम क्लोराइड जो है वो हुआ Na+ बस चेंज हो गया, दिस डायरेक्ट। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट चाहते हो, ऐसे इस रूट से आ जाओ, यानी पहले आपकी लैटिस एनर्जी, फिर हाइड्रेशन एनर्जी होगी। पहले आपकी लैटिस एनर्जी है, फिर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है। तो बेसिकली ये है वो साइकिल बेस्ड ऑन हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन एंड लैटिस एनर्जी। एक तो वो बॉन्ड हेबर साइकिल था जो आपने पहले किया है, एक वो बॉन्ड हेबर साइकिल था जो आपने पहले किया है। यस सर ये कौन सा टॉपिक है? बेटा, हाइड्रेशन और सॉल्यूशन है, बॉन्ड हेबर साइकिल हमने कर लिया था, तो उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक है ये। ओके, तो ये मैंने इसलिए आपको पहले भेज दिया था ग्रुप पे, मैंने कहा ये लोग देख लेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट शुरू करवा दूंगा 5 पेपर, तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन चलो, अभी मैंने ओवरव्यू में उसका दे रहा हूँ जो मैंने भेजी थी वीडियोज आपको। तो मैं वही दोबारा एक दफा फिर बता रहा हूँ कि आपको तीन टर्म्स पता होनी चाहिए: एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी। यानी कि अगर मैं इसका और फर्दर इलाबोरेट करूं इसे, सो सी दिस, आई हैव सोडियम क्लोराइड, I have sodium chloride solid. I have sodium chloride solid, or I have added this sodium chloride solid into the water. So sodium chloride has been broken down into Na+ aqueous and Cl- aqueous. So the enthalpy change that is involved in this reaction is the delta H of solution. क्योंकि आई टोल्ड यू, जब भी आपका सॉलिड एक्वस में जा रहा होगा, दैट वुड बी कॉल्ड द इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज योर डायरेक्ट मेथड, दिस इज योर डायरेक्ट रूट, दिस इज द डायरेक्ट मेथड। इसको मैं कह देता हूं कि दिस इज योर डायरेक्ट रूट, दिस इज द डायरेक्ट रूट। ओके, सो व्हाट इफ आई वांट टू हैव इनडायरेक्ट रूट, तो आप क्या करेंगे,
सबसे पहले आप एक काम करेंगे, this sodium chloride solid is going to break down into the gaseous ions, Na plus gas, Cl minus gas, and that would be called the lattice energy. आप बोलेंगे सर लैटिस एनर्जी में तो ये नहीं होता था कि we will be forming like ionic solid, लेकिन यहाँ तो ionic solid is going to break down। तो आप इसको भी लैटिस एनर्जी कह रहे हैं, आपने उसको भी लैटिस एनर्जी कहा था, उसको का मतलब यानी इसको। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, so this is the equation in which the ionic solid is going to form when Na plus ion is going to combine with Cl minus ion. So this is the इसको हमें अगर मैं define करूँ, so this is enthalpy change when 1 mole of ionic solid is formed from the gaseous ions। तो ये भी लैटिस एनर्जी है। तो लेकिन बेटा ये जो हमने लैटिस एनर्जी लिखी है ना, ये ऑपोजिट ऑपोजिट टू दिस लैटिस एनर्जी है। This is lattice energy but opposite. The sign indicates that the compound is going to break down. अगर ये plus lattice energy है, the compound is going to form, और अगर negative lattice energy है, the compound is going to break down. Simple. Once the gaseous ions are formed, now these gaseous ions are in the same beaker in which the water is present. So the water is going to surround these two ions, like cation and anion. So this would be surrounded by the water. That would be called the delta H of hydration of sodium। और इसी तरह से in the same way the chloride ion is going to surround by water, that would be called the delta H of hydration of Cl minus। तो बेटा this is the indirect method, right? So direct route is equal to indirect route, so that's why I have written this relationship। कौन सा relationship? ये वाला, that delta H of solution is equal to the hydration minus lattice energy। Like delta H of solution is equal to Hyderabad minus Lahore। तो ये आपका relationship है that is going to use in some questions। Let's suppose, I'm telling you that you have to do this question। तो ये जरा देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। So if you can see this, मैं निकाल लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन जरा देखिएगा। ये सीरियस बेटा, जरा ट्राई करें, देन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से फटाफट, शाबाश, जल्दी बेटा, जल्दी, फास्ट, शाबाश, जल्दी 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 बेटा, शाबाश, ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। Use the following data to calculate the standard enthalpy change for this process। This process means what? इन्होंने explain नहीं किया, इन्होंने elaborate नहीं किया उसे, that what is the process जिसकी ये वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, but also he has given the equation। So after looking at equation, you have to identify what is this process. Is this solution? Yes, Is this hydration? फिर Is this solution। lattice energy? हाँ जी, good, good. This is solution. This is solution। तो solution you have to find out। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? मेरे जैसा नल्ला स्टूडेंट अगर हुआ, तो वो सर को कहेगा कि सर ये सॉलिड है, ये एक्वस आयंस है। अभी तो आपने बताया था कि अगर सॉलिड
aqueous जाए, so that would be the solution. So अब delta H of delta Hyderabad minus Lahore, delta H of hydration minus the lattice enthalpy change. So the hydration value is given to you minus 48.5 minus 48.5 plus the hydration of the Cl minus ion, that is minus 167.2, okay, minus the lattice energy, that is the 399.5, 399.5। तो बेटा जरा आंसर बताइएगा क्या आ रहा है जल्दी से। And also you have three chloride ions, so you are supposed to multiply the chloride ion by 3, right? Okay. चलो शाबाश, फटाफट। Sir, 183.8. 183.8, ओके। बेटा सबका यही आंसर आ रहा है, थोड़ा सा कंफर्म सर कीजिएगा बेटा, मेरा तो जल्दी से माइनस शाबाश। 150.6 आ रहा है। Yeah, सर मेरा माइनस 150.6 इतना आ रहा है। डिफरेंस बेटा, जरा yeah, देख ले भाई, that's तीसरा right. भी सॉल्व That's कर ले। right. Minus 150.6. ओके गुड, तो सर आप ओके जी, कंफ्यूज ओके ओके। आपको आपको किलो जूल्स पर ये मोल, वैल्यूज। दैट इज द डेल्टा। सर सर यस, ये बोलो बोलो। वैल्यूज आपने हाइड्रेशन पे और लेटिस एनर्जी पे यही वैल्यूज लिखी हैं। बेटा लैटिस एनर्जी तो आपके पास था ना, सॉलिड इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। और हाइड्रेशन आपका एक्वस, हाइड्रेशन क्या था, गैस टू एक्वस जा रहा था जब। इसका अगर मैं साइकिल बनाऊं तो फर्दर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, जरा देखिएगा बेटा। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। तो अब हो रहा क्या है कि दिस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू द Fe3 प्लस गैस एंड 3Cl minus gas, like this. So this is the value, that is 399.5. This is the hydration, that is minus 48.5, and the chloride is minus 167.2 into 3। तो इस तरह से हमें ये पता लग जाएगा, साइकिल बनेगा तो समझ आ जाएगी। ओके। सर हमारे सिलेबस में सिर्फ यही चीज नहीं है ना, सॉल्यूशन, लेटिस एनर्जी और सॉरी, हाइड्रेशन। क्या कह रही हो बेटा? हमारे सिलेबस में एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, हाइड्रेशन और लेटिस एनर्जी के अलावा भी और हैं, राइट? नहीं, अब वो असल में ये पहले एएस में था, लेकिन अब ये यहाँ आ गया है। ए2 में तो था ही था, ए2 से तो ये हटा ही नहीं था। बाकी आपके पास एटमाइजेशन है, आयोनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है, कंबस्शन है। जो एएस में होता है वो ए2 में लाजमी आता है बेटा, ये पक्का है। एएस का पार्ट है तो ए2 में आएगा ही आएगा। ओके तो सर एएस में तो ये सारी चीजें हैं, तो यू मस्ट नो दीज ऑल। हाँ जी। सर आप एएस का रिवीजन पार्ट रखेंगे? तुम्हारा क्या एक्सेल दे रही हो तुम अबीरा? नहीं एक्सेल नहीं दे रही हूँ, बट सर एएस जो भूल जाते हैं जो सिर्फ ए2 दे रहे हैं उनके लिए आप रखेंगे एएस का रिवीजन? हाँ ऐसी है, ऐसी जैसे
जैसे मिसाल के तौर पर अभी इसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं कि जो इस चैप्टर से आते हैं। लेट्स सपोज जब हम बॉन्ड साइकिल कर रहे थे तो उसके दौरान जो प्रोसेस थे कि आयनाइज कैसे हुआ, एटमाइज कैसे हुआ, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी। बाकी जो है न्यूट्रलाइजेशन वगैरह हो गया तो वो एज सच कोई खास हमें प्रॉपर नहीं करना, तो वो एक ही क्लास में हो जाती हैं चीजें। देख लेंगे उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, जो उसको तो पता है उस टाइम ही लगेगा जब हम आपसे पूछेंगे। तो खैर अभी के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइड्रेशन, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, और बॉर्न साइकिल के लिए यू मस्ट नो एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एंड द लैटिस एनर्जी, फिलहाल के लिए। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? आगे चलो, सबको क्लियर है भाई? हम आज समझ आ रहा है, हम आज समझ आ यस रहा है बेटा? सर। बाकी जी सर, जी सर, जी जो सर। है ईमान ओके, ऑल क्लियर, अशमाल एंड यूसरा ऑल Yes, क्लियर? sir. ओके गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सर आपकी आवाज अटक रही है। हाँ वो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब मेरा तो मुझे बेटा क्वेश्चन, बेटा ये बताइएगा जरा, शाबाश। यस, ये बताइएगा बेटा जल्दी से, शाबाश फटाफट। जल्दी बेटा जल्दी, शाबाश फटाफट। हाँ जी, सर एनीवन? -5983। इसका बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जी सर। सर मेरी -526 आ रही है। बेटा और कोई? बेटा और कोई? सर मेरी -526 आ रही है। Wait, ओके sir. बेटा, यस ईमान, अशमाल, ओके ओके, देखते हैं बेटा, ये देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, दैट use the above data, calculate use of H of solution magnesium hydroxide, and delta H of solution is equal to hydration minus the Sir, lattice enthalpy. Yes. मेरी -5433 वैल्यू है. Okay. Okay. Let's see. Let's see. Let's see, बेटा. Let's see. Let's see. Let's see. तो delta H of solution is equal to hydration minus lattice enthalpy. Hydration is, first of all we have hydration, enthalpy change of hydration of Mg M2 प्लस, यानी कि मेटल का इन्होंने आपको दिया हुआ है, दैट इज M2 प्लस। सही है। मैग्नीशियम का है आपके पास -1890 प्लस प्लस OH माइनस इज -550 into 2
into 2 because you have two OH ions in magnesium hydroxide. This is the hydration. This is the hydration. And then we have minus the lattice enthalpy, that is for magnesium minus 2993. तो जरा सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। शाबाश, जल्दी से। -5987. 12 से यही आंसर आ रहा है बेटा, बाकियों का भी यही आंसर आ रहा है। आना तो नहीं सर चाहिए एक ऐसे सेकंड कर रही हूँ। ये। 3, I got 3. Yes, this is plus 3 बेटा। कैलकुलेशन करो यार। अब इसी तरह से दूसरा, शाबाश। देखो क्या मिस्टेक कर रहे हो बेटा आप लोग। बहुत आसान है यार ये तो। शाबाश, फटाफट। सर -47. बाकियों का भी देख लेते हैं बेटा। सर मेरा सेम आया है 3 again. ओके, लेते हैं बेटा। इसका आंसर है -47। -47 बेटा, हमाद आपका -47 आ रहा है। यस। 1 मिनट सर. सर आप टेबल दोबारा दिखा सकते हैं? मैंने वैल्यूज गलत की थी। जी सर, I got -47. ओके, अब सही आ रहा है आंसर। मैं भी कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैं भी कर रहा हूँ। ओके, हाइड्रेशन ऑफ SR2+, that is -1414, and the hydration for OH minus is 550 multiplied by 2, and then the lattice enthalpy for strontium is minus minus plus 2467. So the final answer would be -47. Okay, जी सर, यही आ रहा आंसर. good. This is good. Okay जी। So आगे आ जाए जरा, आगे आ जाए जरा। वरना कहाँ थे बेटा आप?
अभी तो एज बढ़ती जा रही है तो गुस्सों से ये तो है ठीक है बेटा सी दिस, शाबाश, फटाफट डू दिस क्वेश्चन। डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन फॉर MgCl2 यू हैव टू फाइंड आउट, जल्दी, शाबाश, फास्ट, फटाफट फटाफट बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा मसला हूँ ये हो गया है कि मेरे को क्या संदर्भ में क्या यार ये जो साढ़े लोग हैं ना सर मैं बेटा किसी का म्यूट माइक खुला करना हुआ है, जरा, डिस्टरबेंस हो रही है। बाथरूम में नहीं ना बेटा म्यूट कर दो। जल्दी 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 जल्दी। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, जस्ट चिल। सर हमें तो सीएल की वो हाइड्रेशन वैल्यू दी भी नहीं है। बेटा हर चीज आपको दी हुई है, प्रॉपर क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन है, ढूंढो, मिलेगी, लाजमी मिलेगी, लाजमी मिलेगी, लाजमी मिलेगी। So you have to find out the delta H of solution, and you are given with the delta H of hydration and also the lattice energy for MgCl2 solid. Okay? हाँ जी बेटा, बाकी लोग शाबाश, जल्दी से ट्राई करो, होगा होगा, लाजमी होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो ये भी होगा। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको आयंस का हाइड्रेशन ना दिया हो, बट बेटा आपको लाजमी ओवरऑल का हाइड्रेशन लाजमी दिया हुआ होगा, यानी कि लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू डू डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन माइनस द डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी, तो आप लोग क्या कहेंगे बेटा कि द डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू व्हाट? अगर आप गौर से देखें बेटा, तो द डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन फॉर MgCl2 आपको गिवन है, जो कि कितना है, -801, -801, क्योंकि ये एक्वस है। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन क्या है? व्हेन द gaseous ions are going to the aqueous solution, aqueous condition. इस स्टेट सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेट सिंबल्स को देखकर मैंने डिसाइड किया है कि दिस इज द डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। देन आई नीड द लैटिस एनर्जी वैल्यू, then I need the lattice energy value. So the lattice सर energy value for magnesium chloride is beta G। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें, आपने फॉर्मेशन की वैल्यू हाइड्रेशन पे क्यों लिखी? बेटा मैंने फॉर्मेशन की नहीं लिखी, मैंने लिखा है ये देखकर बेटा, MgCl2 एक्वस बना है आपके पास, एक्वस बना है आपके पास, एक्वस बना है आपके पास, यानी कि आप देखिएगा जरा गौर से, आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी। I had MgCl2 solid, I had MgCl2 solid, right? It will be converted into like this, Mg2 plus aqueous and 2Cl minus aqueous। बेटा मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले ये गया होगा कुछ इस तरह, पहले ये ब्रेक डाउन हुआ होगा, यानी कि पहले ये बना होगा कुछ इस तरह, MgCl2 गैस में चला गया होगा, गैस टू एक्वस। तो ये गैस टू एक्वस वाली वैल्यू दी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ एक्वस आयंस, तो वो मैंने -801 लिया है यहाँ पर, और जो ये है वो माइनस का सर 641 है, पूरा लैटिस सर ब्रेक डाउन हो गया आपका। यस यस सर इज द आंसर -636? बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर आंसर -636 है। आंसर अब नेगेटिव देख लेते 4 हैं आ रहा है। इसको, बेटा -801
minus the 801 and plus का 641. So what would be the answer? Yes, I Sir, think so. minus This 160. exactly. Yes, good. Minus 160 is your final answer. Sir, I didn't get it. आपने minus sorry, हाँ minus 641 क्यों लिया है? बेटा ये रहा minus 641. The lattice energy for magnesium chloride, lattice energy is when the solid is going to form the gaseous ions. So this is the solid. This is the solid. Solid is going to break down. Sir, wait. मैं आपको अपने solution भेज दिया, मुझे आप बताएं कि सही क्यों नहीं है, okay? Okay, दो जरा. भेज दिया. नहीं wait. चलो जब तक नेक्स्ट करो बेटा. शाबाश. हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस करो फटाफट. हाइड्रेशन फॉर Cl माइनस आयन. जल्दी. Sir, minus 796. -96. ओके, बाकी करो बेटा. देखते हैं जस्टिफाई करते हैं नहीं जरा. सर, और minus वेरीफाई. 796. -796. चलो अभी का आंसर हमने नोट कर दिया. माइनस का 796. ओके, बाकी लोग बेटा शाबाश. जल्दी जल्दी जल्दी. Sir, देखें आप देख लेता हूँ. अशमाल. अशमाल ने भेजा है मुझे. अशमाल ने भेजा है मुझे -801 -1890. ये आपने ये वाला क्वेश्चन भेजा हाइड्रेशन वाला बेटा अशमाल. Sir, solution. सॉल्यूशन. तो ये -1890 आपने क्यों रखा बेटा? वो तो आपको फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन की Sir, जगह आपने जब ये क्यों रख दिया? ये formation aqueous aqueous थी राइट, तो इसको माइनस करके हमने इससे एक मिनट. बेटा आपने Mg2+ का तो हाइड्रेशन रख लिया. Cl माइनस का क्यों नहीं रखा? आपने Cl Mg2+ माइनस का को तो हाइड्रेशन माइनस, रख लिया. Cl माइनस का तो हाइड्रेशन आपको दिया ही नहीं हुआ. सर हम नहीं 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 माइनस नहीं, करके माइनस नहीं नहीं निकाल करेंगे ऐसे सकते. करके बेटा. नहीं नहीं नहीं. सर आप ना ना इक्वेशन ना ना, ये प्लस करके परसेंटेज रखा नहीं है ना तो. बेटा. कि अगर आपको. हाँ देखो देखो जरा. दोबारा देखो दोबारा देखो. आपके पास था. मैंने जो साइकिल बनाया था ना बेटा, जरा देखिएगा. मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा कि दिस इज योर MgCl2 सॉलिड. ओके. सबसे पहले इसका डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन हुआ. इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या था? कि वो चेंज हो गया किसमें? MgCl2 एक्वस में. ओके. लेकिन इसका इनडायरेक्ट रूट जो बनेगा, वो पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपका जो MgCl2 है वो कन्वर्ट हुआ होगा MgCl2 गैस में. फिर MgCl2 गैस आपका चला गया होगा MgCl2 aqueous में. So this was your -641. That is the lattice enthalpy, lattice energy formation of MgCl2 solid. यानी reverse of Mg. यानी in this process आपका MgCl2 सॉलिड फॉर्म तो नहीं हो रहा, लेकिन ब्रेक डाउन हो रहा है. यानी कि रिवर्स. रिवर्स है. लैटिस एनर्जी का रिवर्स है. तो नेगेटिव साइन के साथ इन्होंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है.
देन फिर ये क्या हो रहा है, सॉलिड टू गैस टू एक्वस जा रहा है, तो वो डायरेक्ट आपको ये दे दिया, फॉर्मेशन ऑफ एक्वस MgCl2 दैट इज -801। तो आप ओवरऑल वैल्यूज रखो बेटा, आप ओवरऑल वैल्यूज रखो, इन्होंने आपको ओवरऑल दिया हुआ है, तो ओवरऑल वैल्यूज रखी, सो दिस इज माय इनडायरेक्ट रूट। सर मैं ये भी सिक्स नीचे, फोर्टी वन प्लस में नहीं होगा? बेटा अभी आ जाएगा ना आंसर, अभी देखिएगा जरा। मैं भी नीचे, एरो भी नीचे, सो दैट वुड बी -641। मैं ऊपर, क्या नाम है, एक मिनट, एक मिनट, हमने क्या किया बेटा, एरो की डायरेक्शन गलत बनाई है। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने आपको कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 सॉलिड दिया है, यानी कि फॉर्म करना है आपको, आपके एरो की जो डायरेक्शन है वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ होनी चाहिए, आपके एरो की जो डायरेक्शन है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। नोट करो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 सॉलिड, MgCl2 सॉलिड फॉर्म करना है। तो अब इसका साइन, मैं ऊपर मैं नीचे जा रहा हूं, मैं नीचे हूं, एरो आपका अपवर्ड है, तो इसका साइन चेंज हो गया। बाकी मैं भी ऊपर, एरो भी ऊपर, तो उसका साइन चेंज आप नहीं करोगे। सो +641 एंड माइनस का 801 विल गिव यू द -160। ओवरऑल चलो, ओवरऑल चलो, अगर आपने अपने क्वेश्चन में पता है क्या किया हुआ है, इसकी वैल्यू को पुट किया हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ को पुट किया हुआ है। अगर आप ऐसे कर रही हो तो आपको तो Cl- ही नहीं दिया हुआ, टेक्निकली तो आप एक वैल्यू मिस कर रही हो। तो एक ही इक्वेशन में दो चीजों को अननोन कर रही हो आप, ऐसे तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं कभी भी। एक इक्वेशन में एक चीज अननोन होती है, दो चीजें अननोन नहीं होती है। तो इसलिए ओवरऑल हम वैल्यूज पुट करके हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आप नीचे वाला क्वेश्चन करते हो तो इसमें आपसे इंडिविजुअल पूछा हुआ है बेटा। तो अब ये, तो पहले आपने वो किया, तो अब आपके पास चीजें नोन हो गई हैं, तो अब आप इस अननोन को फाइंड आउट कर लो, सॉल्यूशन भी आपको पता है, दैट इज यू नो, and hydration, the hydration for magnesium 2+, so this is unknown, तो आप इसको फाइंड आउट कर लो। कैसे, कैसे इसको फाइंड आउट करोगे आप, तो डेल्टा एच ऑफ solution is equal to hydration minus lattice enthalpy। ओके, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन आपके पास आ गया है, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन का आंसर आपने ऊपर निकाल लिया है, दैट वाज -160। ये आपने निकाल लिया है आंसर, और ये ऑलरेडी आपके पास आंसर आ गया है। किसका सॉल्यूशन, MgCl2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी यू हैव, आपने वो पार्ट 1 में फाइंड आउट कर लिया है, दैट वाज -160, राइट। ओके, सो हाइड्रेशन ऑफ Mg2+, दैट इज -1890, प्लस हाइड्रेशन ऑफ Cl- दैट इज 2x, क्योंकि MgCl2 में दो Cl है ना, तो I'm going to write 2x, then I have the lattice energy, I have the lattice energy, that is MgCl2 की lattice energy, that is -2526, so minus minus plus 2526, so now you can find the value for x। तो जरा बताइएगा x का आंसर क्या आ रहा है बेटा, जरा सर बताइएगा क्या माइनस आंसर आ रहा है थ्री x का, नाइन एट शाबाश। -398। एग्जैक्टली, गुड, दिस इज योर फाइनल आंसर। सर आपने इस आंसर में भी तो परसेंटेज यस पुट अशमाल, अब किया। बताओ, कोई डाउट है, थोड़ा जोर इस से बोलो। इसमें ये सिर्फ क्लोरीन की वैल्यू थी, इस वजह से आपने इसमें परसेंटेज की तरह को निकालने की कोशिश की इसका आंसर, राइट। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। देखिएगा बेटा, ये अब ये क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, शाबाश। फिर क्वेश्चन पढ़ लेना जल्दी से, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। डन सर।
Okay, now see this. Yes. बहुत इजी है यार, सॉल्व करो जल्दी से, शाबाश, मुझे पिक्चर भेजो बेटा फिर इसकी। चलो जी, मैं भी बता रहा हूँ बेटा, आप जरा मैच कर लीजिएगा, इससे टाइम कम है, काम ज्यादा है बेटा। ओके, so this is your Ag2SO4 solid. First of all, first of all, अच्छा बेटा, एरो की डायरेक्शन देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप, ये बनी हुई है यहाँ पर। सो सॉलिड आपको बनाना है, सॉलिड आपको बनाना है, कैसे बनेगा? when you have when you have Ag plus gas, when 1 mole of ionic solid is formed from the gaseous ions, from the gaseous ions, from the gaseous ions, that is your delta H for the lattice energy. ओके, मैं तो समझ गया एरो की डायरेक्शन देखकर और इसका स्टेट सिंबल देखकर। कैसा? ये तो बड़ा आसान है यार। अच्छा जी, ओके, फिर तो हमारे आगे के रास्ते आसान हो गए ना मेरे भाई। कैसे? आई हैव टू फॉर्म आई हैव टू फॉर्म द गैसियस आयंस। लाइक गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? गैस से किस में जाता है? एक्वस में जाता है ना। एरो मुझे यूं बनाना चाहिए, ये लो एक्वस में चला गया, ये लो एक्वस में चला गया। दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस। सो व्हाट इज द प्रोसेस? बेटा क्या लिखूं यहाँ पर मैं? व्हाट इज दिस? यस, ईमान, हाइड्रेशन। अनान, Hydration. ईमान, यूसरा। हाइड्रेशन, गुड, गुड, दिस इज हाइड्रेशन। मेरे बच्चे, यहाँ क्या लिखूं मैं और एरो की डायरेक्शन क्या बनाऊं? Solution. यस, सॉल्यूशन, वेरी गुड। और एरो की डायरेक्शन यहाँ बनाऊं या यूं बनाऊं? यस, Right. डाउनवर्ड। अपवर्ड, डाउनवर्ड? नीचे की तरफ डाउनवर्ड। से। Down. डाउनवर्ड, 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 क्योंकि सॉलिड टू एक्वस जाता है सॉल्यूशन में। बेटा 4 मार्क का क्वेश्चन, ओ माय गॉड, उफ, बेहतरीन, गुड हो गया जी, गुड हो गया। तो बेटा ये सारे आपको करने हैं, सब आपको सॉल्व करना है, एंड दिस इज नॉट अ बिग डील, बहुत इजी है बेटा, जस्ट एंजॉय। ये कर लो बस आज के लिए, ये शाबाश, फटाफट जल्दी से। अब सही बताना है यार आंसर इसका, जल्दी से।
यस, आंसर बताइएगा बेटा मुझे। सर -377। -377। जी सर, सेम आंसर। बेटा बाकियों का भी यही है? अरे यार wait, क्या बात है यार, लविंग लविंग लविंग, गुड। wait. -377 इज योर फाइनल आंसर। बेहतरीन हो गया यार उस्ताद, ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है अब। बेटा आप किसी को ये ना समझ आया तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, जरा देखिएगा बेटा इन्होंने कैसे किया है। Delta H of solution is equal to the delta H of hydrogen minus the delta H of lattice energy. So delta H of solution आपको गिवन है, कितना है? -25, -2524। हाइड्रेशन आपको चाहिए Cl-Mg2 प्लस का आपको गिवन है -1925 प्लस का 2x, 2x, and the value for the lattice energy is, नहीं सॉल्यूशन मैंने गलत लिख दिया है, सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कितना, -155। ओके, और ये हो जाएगा 2524। चलो जी अब देखो जरा, कैलकुलेट करो जरा इसे। Yes, it's -377. एग्जैक्टली, ओके जी। तो बेटा ये आपको सारा करना है सॉल्व।